میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو 2 دفعہ آپ نے کوئین الزبتھ سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے جی اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آپ کو انہوں نے کوئی ایوارڈ دیا ہے، کیا کیا ہے آپ نے ایسا؟ کیا آپ کی زندگی کی سٹوری ہے؟ وہ سارا میں نے جاننا ہے آج۔ امی نے کہا مجھے کہ تو جو ڈاکٹر نہ بنا تو واپس مت آنا۔ یہ تو ایسے جیسے کوئی فلم کا جیسے مر گیا، فنشڈ۔ تو یہ چیریٹی میں اور یہ جو باقی پروجیکٹس ہیں ادھر کیسے آئے آپ؟ If trees from Amazon go اب تو 20% چلے گئے ہیں، 50% ہو گئے نا، سمجھ لو دنیا ختم۔ نان وائٹس تھے جس کا چمڑی کا رنگ سفید نہیں تھا، ان کے لیے سائنس نہیں دیتے تھے، ان کے لیے صرف آرٹس تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے 2 دفعہ کوئین الزبتھ سے ملاقات کی ہوئی ہے۔ بس مجھے اتنی سی بات پتہ چلی تھی اور آگے مزید ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے میں نے ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے، انہوں نے مجھے وقت دیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ۔ فرسٹ آف آل بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے پروفیسر گیٹریڈ۔ آپ کا بھی شکریہ ہے، آپ نے ہم کو دعوت دی ادھر آنے کی۔ بہت شکریہ۔ بیسیکلی آپ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں یا یو کے سے؟ میں آیا ادھر یو کے سے، لیکن میں اوریجنلی انڈین ہوں۔ اچھا، لیکن سمجھ لو میں پاکستانی اڈاپٹڈ ہوں، کیونکہ میں پاکستان قریباً 10 دفعہ آیا۔ اچھا، میری خود کی جو پیدائش تھی نا وہ تھی ملاوی میں، افریقہ۔ لیکن یہاں جی میرے ماں باپ جو تھے نا وہ انڈیا سے آئے تھے۔ اچھا اوکے پروفیسر، آئی جسٹ وانٹ ٹو نو، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو 2 دفعہ آپ نے کوئین الزبتھ سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آپ کو انہوں نے کوئی ایوارڈ دیا ہے، کوئی گفٹ دیا ہے، کیا کیا ہے آپ نے ایسا؟ کیا آپ کی زندگی کی سٹوری ہے؟ وہ سارا میں نے جاننا ہے آج۔ اچھا اوکے، جو او بی ای کہتے ہیں، جب میں نے پہلی دفعہ کوئین الزبتھ سے ملا تو وہ تھا کہ بچے جو ہے نا سارے ویسٹ میڈلینڈس کے اندر، ویسٹ میڈلینڈس ایک بڑا سا علاقہ ہے، تو جیسے پنجاب ہے پاکستان کے اندر، تو بچے کی ایکسیس یعنی ہاسپٹل کے اندر جاتے تھے تو یا جگہ نہیں تھی یا ان کے ڈاکٹر جی پیز کہتے ہیں ان کو مدد نہیں کر سکتے تھے، تو وہ زیادہ بیمار ہو جاتے تھے۔ اور ہماری ہاسپٹل میں جو بیڈس تھے نا کافی بڑی سی لمبی سی بیڈس تھی، یعنی 40-50 بیڈس تھی۔ تو میں نے ہمارے مینیجر کو کہا کہ یہ جو بیڈز ہیں نا ہم ایسے کریں گے کہ 10 بنا دو۔ اچھا، وہ جو دوسری اپنی جو ریسورسز جو ہے نا وہ ایسے بنا دو کہ آپ اسیسمنٹ یونٹ کر لو، جیسے کہ پیشنٹ، ایوری پیشنٹ کین بی ایکسیسڈ، یو ہیو ٹو کم، اف somebody rings you he has to come to hospital, he has to be accepted۔ آپ ان کو چیک کر لو، گھر بھیج دو، یا آپ ان کو رکھ لو آبزرویشن، یا پھر ان کو ایڈمٹ کر لو۔ اچھا، تو دیٹ واز مائی فلاسفی۔ سو ان انگلینڈ آئی واز پروبیبلی دا فرسٹ اور دا سیکنڈ۔ مجھے لگتا ہے لیسٹر نے شروع کیا تھا، وہ شروع کرتے تھے اور ہم بھی کرتے تھے۔ تو یہ جو کیا نا، سو سیکرٹری آف اسٹیٹ کیم ٹو سی می کہ آپ نے یہ کیا ہے، پیڈیاٹرک اسیسمنٹ یونٹ، ون آف دا فرسٹ ان دا کنٹری۔ اچھا، تو ان کے لیے مجھے وہ تحفہ ملا، ایوارڈ ملا فرام دا کوئین، بیکاز دیٹ واز فالوڈ بائی a lot of other hospitals around the country۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ ہے میں نے شروع کیا یہ میں کنسلٹنٹ بنا 1982 کے اندر۔ اچھا، and that time آپ what was your age؟ I was 38 at the time۔ So tell me about your، آپ اپنی جوانی کے بارے میں بھی بتائیں نا کہ آپ نے جو ہے کیسے یہ سفر شروع کیا اور کیا کیا جو ہے آپ کا۔ جب میں 5 سال کا تھا میں افریقہ میں رہا تھا، تو مجھے یاد ہے، میرے ذہن میں بھی ہے، میں دیکھ سکتا ہوں کہ میرے ابو مجھے سیڑھی پہ چلاتے تھے پہلے دن میرا اسکول میں۔ وہ مسز فرنانڈس کو کہا کہ مسز فرنانڈس میرے بیٹے کو ڈاکٹر بنا لو۔ اچھا، 5 سال کا تھا۔ اچھا، الحمدللہ 10 کے 11 سال میں ملاوی رہا۔ ان کے بعد سیکنڈری ایجوکیشن نہیں تھا ملاوی کے اندر۔ اچھا، یا آپ کے بزنس میں چلے، آپ کے فیملی کے بزنس میں، یا پھر آپ ویسے ہی ہو، یا پھر آپ کو باہر جانا پڑے گا۔ تو یا کوئی انڈیا جاتے تھے، کوئی امریکہ جاتے تھے، کوئی
आप कोई जर्मनी जाते थे, तो डैडी ने कहा चलो आप जिम्बाब्वे जाओ। अच्छा, वो रोडेशिया था तब, तो मैं जिम्बाब्वे गया था। तो जिम्बाब्वे जाने में भी प्रॉब्लम था, क्योंकि सभी तो जिम्बाब्वे नहीं जा सकते, अफोर्ड करते तो भी नहीं जा सकते, क्योंकि सारे लोग, क्योंकि ये ऐसा माहौल था कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत था। और एक ही स्कूल थी सारे जिम्बाब्वे के अंदर, और एक ही स्कूल थी सारे जाम्बिया के अंदर। जाम्बिया नॉर्दर्न रोडेशिया कहते थे, जिम्बाब्वे को सदर्न रोडेशिया कहते थे। एक स्कूल नॉन वाइट्स के लिए, एक स्कूल नॉन वाइट्स के लिए, तो समझ लो 1000 से ज़्यादा चिल्ड्रन थे। लेकिन मलावी में तो स्कूल नहीं थी, दैट्स वाई मैंने जिम्बाब्वे जाना था। लेकिन उनकी स्कॉलरशिप थी, सिर्फ 4 बच्चे को जाने देते, स्कॉलरशिप, पेड स्कॉलरशिप नहीं, अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी। उसमें आप भी थे? 4 में से मैं था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उधर गया, तो फिर उधर से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ओ लेवल्स हासिल की, और ओ लेवल्स हासिल करने के बाद मैंने तो डॉक्टर बनना था ना। मेरे अबू ने कहा डॉक्टर बनना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा डॉक्टर बनेंगे। तो फिर ए लेवल्स नहीं थी उधर, तो मैंने 11 ओ लेवल्स किए, फिर ए लेवल्स नहीं थी। तो ए लेवल्स नॉन वाइट्स थे, जिसका चमड़ी का रंग सफ़ेद नहीं था, उनके लिए साइंस नहीं देते थे, उनके लिए सिर्फ आर्ट्स था। और मैंने मेरे अब्बू के कहा कि, तो वो कहते कि देखो देखेंगे, पैसे की कुछ दिक्कत है तो नेक्स्ट थिंग वुड बी कि आप इंग्लैंड जाना, लेकिन एक साथ पैसे की कुछ दिक्कत है तो फिर आप कुछ ना कुछ करो। तो मैंने इकोनॉमिक्स और फ्रेंच एंड लैटिन आई डिड एट ए लेवल्स। तो तब फिर अबू ने कहा चलो जाओ, इंग्लैंड चले गया। इंग्लैंड आया मैं आया लंदन। लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि काफ़ी लोग लंदन आए हैं, काफ़ी लोग लंदन डॉक्टर बनने के लिए आए हैं, काफ़ी लोग लंदन पढ़ने के लिए आए हैं, लेकिन 100% समझ लो वो वापस आ गए हैं बिना एजुकेशन। अच्छा, तो अम्मी ने कहा मुझे कि तू जो डॉक्टर ना बना तो वापस मत आना, वापस घर मत आना। ये तो ऐसे जैसे कोई फिल्म का, जैसे मर गया, फिनिश्ड। ओके, तो ये यानी मुझे पैशन था डॉक्टर बनने का, लेकिन मैं खुद को समझता हूँ कि आई वाज एवरेज इंटेलिजेंस, अल्हम्दुलिल्लाह। आई वाज़न्ट स्टूपिड बट आई वाज़न्ट द बेस्ट इन द क्लास। ओके, तो फिर हम लंदन आए और ए लेवल्स किया। अच्छा, तो ए लेवल्स में ऐसा हुआ कि ये भी देखो डिस्क्रिमिनेशन की बात है। फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत सी यानी आई वाज गुड, लेकिन ज़ूलॉजी जो है ना, बायोलॉजी जैसा, उनमें कुछ आई वाज पुअर, नॉट एज गुड एज इन द अदर। मैं समझा वो ठीक हूँ, लेकिन वो समझते हैं कि नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा कि 2 ही सब्जेक्ट करो, 3 नहीं। तो मैंने कहा 3 तो मेरा डॉक्टर बनना है। तो वो कहते हैं कभी तो डॉक्टर नहीं बनेगा। अच्छा, हाँ। तो फिर मैंने कहा या अल्लाह क्या करेंगे। तो एक जूइश यानी यहूदी फैमिली थी, उनका घर लंदन में हमने किराए पे लिया था। तो वो जो घर रहते हैं ना जूइश होम्स, उनके बाहर एक जब झुपड़ी होती है, तो मैंने मछली को खरीदा, क्योंकि टू बी ए लेवल्स के अंदर या मछली या फ्रॉग्स या ससले, उसका ऑपरेशन करना। तो मैं ये किया। फिर आई स्टडीड ज़ूलॉजी ऑन माय ओन फॉर 1 ईयर। अच्छा, खुद 2 सब्जेक्ट उधर किए, 1 सब्जेक्ट में घर सिर्फ आई प्रेड माई सेल्फ। बट जैसे देखो जब आसमान आपके साथ होते हैं ना, या तो नथिंग कम्स इन द वे। अच्छा, मैंने जब ए लेवल्स लिए तब 30 लोग थे हमारी क्लास के अंदर, ओनली 1 person got A, and that was you। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो ये जो है ना, आई थिंक आई डिडंट एक्सपेक्ट इट, लेकिन
मेरा जो वादा था वो तो पूरा हो गया हाँ कि जी, मुझे ए लेवल्स मिल गए, अच्छे ग्रेड्स मिले, लेकिन आई वाज ओनली हु गॉट ए। तो फिर यूनिवर्सिटी का मसला हुआ, यूनिवर्सिटी में बहुत डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, तो समझ लो कि यूनिवर्सिटी में 100 लोग को बच्चे को देते हैं प्लेसेस, एडमिशन, सिर्फ 4 को देते हैं। अच्छा, तो हमने 6 यूनिवर्सिटीज को यानी अप्रोच किया, यानी यू कैन ओनली अप्लाई फॉर 6 यूनिवर्सिटीज, उनमें से 5 तो रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, और जो एक थी लीड्स वाली, उन्होंने मुझे वेटिंग लिस्ट पे दिया कि आप वेटिंग लिस्ट पे जाओ। तो मैंने अबू से बात की, मैंने कहा राइट, दिस इज एंड ऑफ स्टोरी, वेटिंग लिस्ट पे है, 5 तो रिजेक्ट कर दिए हैं। तो अबू कहते चलो आ जाओ घर। तो मैं मलावी फ्लू बैक टू मलावी, आप मलावी वापस चले गए, वापस चला गया मैं मलावी। लेकिन आपकी मदर ने तो कहा था कि वापस नहीं हाँ, आना। वापस हॉलीडे पे गया मैं। अच्छा, हॉलीडे पे गया। नो वो तो मैं वेकेशन अच्छा। वेटिंग फॉर माय ए लेवल्स, जो 8 लेवल्स नहीं मिले। तो अम्मी कहती थी कि आपको डिग्री मिल जाएगी LRDF। LRDF का मतलब लंदन रिटर्न डैम फूल, समझे ना। तो मैंने कहा चलो LRDF बन जाएंगे, क्योंकि ये जो जर्नी है ना, ये मैं समझा नहीं कभी नहीं होगा। अच्छा, तो हम तो डैडी मम्मी के साथ हम हॉलीडे पे चले, लेक पे, ये वो, जैसे इधर से आप कश्मीर मत जाएंगे। तो टेलीफोन आया कि यू गॉट इनटू लीड्स यूनिवर्सिटी और आपको 24 आवर्स के अंदर आना ही है। जो आप ये साइन नहीं करेंगे फॉर्म्स, तो फिर एडमिशन इज गॉन, एडमिशन गॉन। तो रात को हमने सारी रात चलाई, सीधे एयरपोर्ट पे आए। अच्छा, एयरपोर्ट तक हवाई जहाज लिए, लीड्स में आ गए। तो ये मेरी कहानी है अप टिल देयर, अच्छा, व्हेन आई गॉट इनटू लीड्स यूनिवर्सिटी। फिर लीड्स यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह पास्ड क्वाइट वेल। अच्छा, फिर हम डॉक्टर बन गए, MBBS जैसे हम MBCH भी कहते हैं, MBBS अच्छा। जैसा ही है। अच्छा, अच्छा। ठीक है। But alhamdulillah I got a good degree. But discrimination इतना होता है, तो मुझे अच्छा सा जॉब मिला जब मैंने ये क्या कहते हैं पास हो गया। फिर आप पास होने के पहले अप्लाई करते हैं जॉब्स, हाँ जी, तो मुझे अच्छा जॉब मिल गया। तो फाइन, तो हॉलीडे आई ना, क्योंकि 2 महीने की हाँ। हॉलीडे और फिर जॉब शुरू होता है। तो हॉलीडे जाने के पहले मुझे कागज आया कि सॉरी वी हैव गिवन द जॉब टू समबडी एल्स, हमने किसी दूसरे को जॉब दे दिया है। फिर तो मेरा जॉब ही नहीं है, मैं घर भी नहीं जा सकता। अच्छा, तो फिर दुआ तो करते हैं ना हम। अच्छा देखो, तो अल्हम्दुलिल्लाह जॉब मिला मुझे वो जगह पे जो मैं समझा अच्छा सा जॉब नहीं है, लेकिन वो जो था ना, मुझे मेरा कंसल्टेंट, ऐसा कंसल्टेंट इधर है, सीनियर रजिस्ट्रार, सीनियर हाउस ऑफिसर, और उस वक्त की बात कर रहा हूँ। ही वॉज ब्रिलियंट। उन्होंने मैं ऐसी सिखाई चीज़ें, इंसानियत की सिखाई चीज़ें, मेडिसिन की सिखाई चीज़ें। सो मैंने मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी सब चीज़ कर लिया। अच्छा, तो उनके बाद फिर डिग्रीज आए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज। तो मैंने DCH की, डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ, फिर क्या डिप्लोमा इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। अच्छा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह आई वांटेड टू बी रजिस्ट्रार। तो अब तो हाउसमैन, सीनियर हाउसमैन, रजिस्ट्रार बनने, तो जॉब नहीं मिला, किधर भी जॉब नहीं मिला। गोरे लोग 7-8 थे, अच्छा, और काले लोग को नहीं मिला। तो फिर मैं एक कंसल्टेंट के, एक स्पेशलिस्ट के पास गया, प्रोफेसर के पास, प्रोफेसर मेडोज उसका नाम था। मैंने कहा क्या कर सकता हूँ? वो कहता है तो पीडियाट्रिक्स करना है ना, जनरल पीडियाट्रिक्स, यू विल नेवर गेट अ जॉब। तो ऐसे कर कि तू पीडियाट्रिक डर्मेटोलॉजी यानी चमड़ी की बीमारी करो, या फिर कार्डियोलॉजी करो, कुछ ना कुछ डिफरेंट करो, तो आपका दरवाज़ा खुल जाएगा। तो दैट वाज द बेस्ट एडवाइस आई गॉट। तो मैंने कार्डियोलॉजी किया। अच्छा, जब मैंने कार्डियोलॉजी किया तो अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता मिल गया। इन दरमियान में
मैंने दूसरी डिग्री हासिल की, स्पेशलिस्ट डिग्री, टॉप डिग्री टू बिकम ए कंसल्टेंट. अच्छा, उनको कहते हैं MRCP कहते हैं. तो आप कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं? हाँ, मैं आपको बताऊं तो ये जो है ना, तो मैंने कार्डियोलॉजी 3 साल के लिए की, 3 years फॉर कार्डियोलॉजी. अच्छा. और मुझे कार्डियोलॉजी स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रार नहीं मिला, बिकॉज गोरे को मिलता था. डिस्क्रिमिनेशन. समझे ना. तो अब फंस गया. तो कहते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट बनूं या जनरल पीडियाट्रिक्स. अब तो मैं क्वाइट हाई अप, तो मुझे चॉइस है अभी. तो लोग कहते हैं देखो कार्डियोलॉजिस्ट 7-8 साल निकल जाएंगे, तो आप जनरल पीडियाट्रिक्स करो. तो फिर हमारे जो प्रोफेसर थे उनसे मैंने बात की कि मैंने आई वांट टू बिकम ए कंसल्टेंट, और सीनियर रजिस्ट्रार के जॉब मिलते थे. आप सीनियर रजिस्ट्रार बच गए, समझ लो कंसल्टेंट आप बन गए. तो वो मुझे कहता है कि यू विल नेवर बिकम ए कंसल्टेंट. अच्छा. क्योंकि आप जो ये करते हैं ना, व्हाट यू आर डूइंग विथ जनरल पीडियाट्रिक्स, सिर्फ गोरे ही करते हैं. आपको ऐसे करो, आप ऑर्थोपेडिक्स में चले जाओ, साइकियाट्री में चले जाओ, GP बन जाओ. पर जब तक मैं प्रोफेसर हूँ नहीं बन. ओके, नो जॉब. तो मैंने कहा ओके, मेरा जो रंग सफेद था, तो हाउ विल यू एडवाइज मी. तो वो कहता है कि यू आर फुली क्वालिफाइड, यू आर रेडी टू बी ए कंसल्टेंट. अच्छा, लेकिन हमारी जो फ्रेटर्निटी जो है ना, उनमें यूजुअली ऐसे रंग के नहीं आते. तो मैं कहता मैं वेस्ट मिडलैंड में हूँ. तो वो कहता वेस्ट मिडलैंड में एक ही नहीं है आपके जंगली वाला, सब गोरे हैं. बिकॉज दिस इज एक्यूट पीडियाट्रिक्स. यू सी लुकिंग आफ्टर न्यूबॉर्न बेबीज, लुकिंग आफ्टर सिक चिल्ड्रन, ये वो. तो मैंने कहा व्हाट कैन आई डू. तो कहता है गो टू अफ्रीका फॉर अ कपल ऑफ इयर्स. अच्छा. तो मैं अफ्रीका चला गया. मुझे तो मजा आई, माँ बाप तो उधर ही थे. अच्छा, मेरे पास डिग्री सब कुछ है. लेकिन अफ्रीका जाने में अफ्रीका वाले कहते हैं कि आपको सीखना पड़ेगा सर्जरी. तो मैं ऑब्स्टेट्रिक्स, तो मेरी डिग्री थी मेरे पास, लेकिन मैंने ऑब्स्टेट्रिक्स नहीं किया था. मैं पीडियाट्रिक्स 4-5 साल किया था. तो फिर ऑपरेशन सीखना पड़ा. तो मेरा डेज ऑफ था ना, द डेज ऑफ, वीकेंड्स ऑफ, मैं सर्जरी जो रजिस्ट्रार थे ना, गायनी ऑब्स्टेट्रिक्स गायनी के, उनका साथ मैंने ये सीखा. तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज एबल टू डू सिजेरियन सेक्शंस. ओके. तो फिर मलावी गया. ये जो चक्कर है ना सारा, उनमें एक बंदा है, उनको मैं आपको वो कहूँगा वो कौन है. मैं जब जिम्बाब्वे गया ना, तब उनकी स्ट्रीमिंग एग्जाम होती है. स्ट्रीमिंग एग्जाम में ABCDEF होता है. ऐसा. तो उन्होंने जब एग्जाम्स मैंने किया ना, तो आई गॉट बैड मार्क्स. क्योंकि मैं समझा ही नहीं वो सवाल क्या करते हैं. अच्छा. तो मुझे D में डाल दिया. तो D में सिर्फ एक टर्म के लिए आप वो सब्जेक्ट कर सकते हैं जो A में है. जो आपने ठीक से मार्क्स नहीं लिए, तो फिर आप अकाउंटेंसी कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, प्लम्बिंग कर सकते हैं. अच्छा, ब्रिक लेइंग कर सकते हैं. अच्छा, तो ऐसी चीज़ें थी. तो वो चैलेंज था. तो अजीज़, उसका नाम था अजीज़ ओस्मान, और अजीज़ ओस्मान के हम दोस्त थे, क्योंकि वो इनक्रेडिबल क्रिकेटर था. अच्छा. अच्छा. और मैं उनके साथ क्रिकेट खेलता था. अच्छा, आप क्रिकेटर भी हैं? मैं भी क्रिकेटर हूँ. अच्छा. तो वो हेडमास्टर के जब कहता है कि देखो रशीद, या मेरा नाम रशीद है ना, रशीद, आई एम गोइंग टू हेल्प हिम. अच्छा, बिकॉज आई नो ही प्लेज क्रिकेट. एंड जब मैं कैप्टनसी छोड़ी है तो उनको देना, बट आई विल मेक हिम वर्क हार्ड. अल्हम्दुलिल्लाह, शॉर्ट स्टोरी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर दूँ, तो आई गॉट वेरी हाई मार्क्स. या तो उन्होंने मुझे D से A पे लगा दिया. ऐसा. जब A पे लगा दिया, तो उधर तो सब तो वेरी ब्राइट पीपल, यू नो. तो मैं तो 28th 29th आ रहा था ऐसे. अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 साल के अंदर टॉप 3. तो वो जिम्बाब्वे की बात हो गई. लेकिन वो अजीज अब लंदन आया था. अच्छा. तो जब मैंने
मैंने जब ए लेवल किया ना, तब मैं समझा ए लेवल में 1 साल में कर लूँगा, क्योंकि मैंने ए लेवल किया था तब 2 साल दूसरे करने, तो ए लेवल फॉर 5 years वो तो बड़ी चीज़ है। मैंने कहा 1 साल में करूँगा। अजीज़ कहता है नो, यू डू इट इन 2 years, क्योंकि यू वोंट बी एबल टू डू इट। सो बड़ा सा समझ लो कि, तो अजीज़ लंदन पढ़ता था, वो अकाउंटेंट बना, तो मुझे बेस्ट एडवाइस दिया, तो मैंने फिर लंदन लीड्स किया, वो स्टोरी हो गया। तो अब मैं जब डॉक्टर बन गया, मुझे जॉब चाहता है इन मलावी, नोबडी वांट्स टू गिव मी अ जॉब। वो प्रोफेसर कहता है यू हैव टू गो अब्रॉड। अच्छा, तो मैंने अजीज़ से कांटेक्ट किया। अजीज़ का कांटेक्ट था एक कैथोलिक हॉस्पिटल के साथ, तो वो कैथोलिक हॉस्पिटल कहते हैं कि वी कांट एक्सेप्ट समबडी हु इज अ मुस्लिम। तो अजीज़ कहता है कि आपके बोर्ड पे मैं हूँ एंड आई एम ए मुस्लिम, सो आर यू एक्सपेक्टिंग मी? ही सेज, वो कहते हैं कि ये जब इधर आएगा ना तो ही विल चेंज एवरीथिंग, बिकॉज वो तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। वो कहते हैं हाँ। हमको चाइल्ड स्पेशलिस्ट ज़रूरत नहीं है, हमको उसकी ज़रूरत है, वो ऑपरेशन कर सकता है। मैंने कहा मैंने सीखा है। अच्छा, तो मैं आ गया। तो ये हुआ, अजीज़ और हम अल्हम्दुलिल्लाह छक्के मारे। या आई वाज बेटर बॉलर। सो इन मलावी हमने इंटरनेशनल क्रिकेट खेले एंड आई एंजॉयड इट। मेरा मन नहीं था मैं वापस गाऊँ, लेकिन मेरा वादा था उनसे। मेरी अब तक तो मेरी बीबी भी आ गई थी, समझे ना, तो वादा था कि मैं जाऊंगा वापस। तो मलावी में मेरी बीबी के साथ था, इसे जब मैं गया था तो बच्चे भी नहीं थे। तो देखो ये जो है ना, दिस वाज एन इंटरेस्टिंग फॉर मी। तो ये एक चैप्टर था मेरा कि अजीज़ ने मुझे ये बताया, और मैं यानी मैं पोस्ट ग्रेजुएट शुरू हुआ। पोस्ट ग्रेजुएट बाद वो दूसरी कहानी है, मैं आपको करूँगा जो आपके पास वक्त है तो। जी, वक्त मेरे पास है। अच्छा ठीक है। तो दूसरी कहानी है कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया। अच्छा, मैंने एक चीज़ मैंने सीखी कि जो गोरे लोग होते हैं उनकी जो डिग्री आपकी डिग्री इक्वल होती है तो काम नहीं चलता, यू हैव टू हैव समथिंग बिग। अच्छा, तो मैंने जब मुझे कंसल्टेंट का जॉब मिलने वाला था, तब मैं कोई मुझे जॉब नहीं दिया। मैंने सीनियर रजिस्ट्रार बन गया, मैं अफ्रीका से आ गया। अच्छा, नो जॉब्स। मैं एबरडीन गया, अल्फाबेट्स, एबरडीन, ब्रैडफोर्ड, कैम्ब्रिज, डॉन्कास्टर, नो जॉब, किधर ही जॉब नहीं मिले। 10 इंटरव्यूज मैंने हासिल किए, 10 इंटरव्यूज। फिर आखिर में मैंने मेरे अबू से बात की कि देखो मैं तो जीपी बनेगा, अभी छोड़ो ये कंसल्टेंट का, मुझे नहीं मिलता। तो अबू मुझे कहते हैं कि आई एम सरप्राइज्ड दैट यू आर टेलिंग मी दिस। ही सेज, सारी जिंदगी यू ऑलवेज हैड वन डायरेक्शन, डोंट गिव अप। ऐसा मैंने कहा बिस्मिल्लाह। तो वॉल्सॉल में जॉब आया, वॉल्सॉल वेस्ट मिडलैंड्स, जिधर मैं अभी भी प्रोफेसर हूँ। अच्छा, तो वॉल्सॉल की कहानी इंटरेस्टिंग है। मुझे इंटरव्यू आया। अच्छा, कभी कभी तो इंटरव्यू में लेते भी नहीं है। इंटरव्यू आया तो बर्मिंघम था, तो मैं मैनचेस्टर में था, तो मैनचेस्टर में नहीं कहा, तो उधर हम आपने सुना होगा M6 का, M6 सीजन वो जाती है मैनचेस्टर से लेके बर्मिंघम तक। तो हम निकले गाड़ी में, मेरी बीवी और मैं। इंटरव्यू 2 बजे था, तो हम दोनों निकले। तो वो कहती है इतनी जल्दी जाने का क्या है, मेरी बीवी कहती है। तो मैंने कहा जल्दी से पहुंचेंगे, उधर लंच ले लेंगे, फिर फ्रेश हो जाएंगे, तो इंटरव्यू से चलो ठीक है। तो वो रास्ता है ना, वो कंस्ट्रक्शन हो रहा था उधर। कंस्ट्रक्शन इतना हो रहा था कि हमारी गाड़ी फंस गई, लेट हो गए रास्ते पे। अच्छा, यानी क्यूज थी, डाइवर्शंस आए, ये वो, और टाइम तो चल रहा। मैंने कहा या अल्लाह, अभी तो 11 बज गए हैं, 11:30 बज गए। अच्छा, तो 11:30 बजे तो हम बर्मिंघम पहुंचने वाले थे। तो मैंने बीवी को कहा चलो, मोबाइल फोन नहीं थे बाबा, 1982 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ओके, वो नो मोबाइल। तो फिर मैंने मेरी बीवी को कहा तो बाहर निकल के वो जो काम करने वाले हैं ना, रोड वाले, उनसे कह दे कि मेरा इंटरव्यू है। तो वो क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल को फ़ोन कर ले, उनको कह दे कि हम लेट होने वाले हैं क्योंकि हम फंस गए इधर।
तो वो कहते बाबा मैं जो निकली गाड़ी से और आप आगे चले तो मेरा क्या होगा? तो वो भी रीजनेबल है. अब ये दिस इज अ चेंजिंग पॉइंट इन माई लाइफ. अच्छा, आई हैव गॉट नोवेयर टू गो. जैसे कि बिल्ली लाइट में आती है रात को और फंस जाती है, वैसे मुझे हुआ. तो एक ही रास्ता था, वो रास्ता था या अल्लाह मुझे उधर पहुंचा दे, मुझे इंटरव्यू में पहुंचा दे, तो मैं तेरे लिए ऐसी बड़ी सी काम करूंगा, लेकिन तू मुझे बता कि क्या काम करना है, मैं जरूर करूंगा वो काम. मैं अल्लाह से दुआ की. मेरी बीबी कहती है अल्लाह सुनेगा, मुझे पता नहीं. मैंने कहा देखो, you won't believe it हमजा जी, that within minutes सारी चीजें हट गए, मैं पहुंच गया उधर. 10 मिनट बाकी है. अच्छा, फ्रेश होके उधर बैठ गया. सारे गोरे लोग बैठे उधर, क्योंकि मेरे जैसे लोग को डोंट इवन शॉर्टलिस्ट नहीं करते. अच्छा, बिस्मिल्लाह करके मैं अंदर गया. किसी को जॉब नहीं मिला, मुझे जॉब मिला. ऐसा 6 महीने हुए, मैं कंसल्टेंट हूँ. 6 महीने हुए. उन्होंने मुझे कहा कि वन ऑफ द थिंग्स यू नीड टू डू कि वॉल्सॉल वाज द वर्स्ट प्लेस. सारी यूके के अंदर वॉल्सॉल के अंदर ज्यादा बच्चे मर जाते थे. तो कहते डॉक्टर गैट्रा, तब तो मैं डॉक्टर था, यू हैव गॉट टू डिक्रीज द डेथ रेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज. Newborn babies, 19 were dying per 1,000. 1,000 का जन्म हुआ, 19 मर जाते थे. लेकिन दूसरी जो हॉस्पिटल्स थी, कोई भी हॉस्पिटल ले लो, 15 per 1,000, 12 ऐसा. तो ये तो बड़ा सा चैलेंज था. तो वो तो ओवरनाइट नहीं हो सकता. तो ये मैं बात आपको दोबारा करूँ. लेकिन 5-6 महीने हुए, मैं समझ लो जैसे मछली पानी से बाहर आती ना, तो मैं कहा या अल्लाह, मुझे पता नहीं क्या, मैंने आपके वादा तो किया है, लेकिन कैसे पूरा करूंगा मैं. ऐसा नींद भी नहीं आई मुझे. हर रोज मैं कहता हूँ या अल्लाह मुझे रास्ता बता. जुमे का दिन आया 6 महीने के बाद. तो एक पेशेंट था उधर. तो वो पेशेंट का नाम था रुकैया जीवा, बिकॉज दैट वाज अनदर टर्निंग पॉइंट. ये मुझे याद है. मुझे मिलियंस पेशेंट्स मैंने देखे या, पर जो पेशेंट ने लाइफ चेंज की है उसका याद है मुझे. तो ये जीवा रुकैया वो ठीक हो गए. उनके पास कुछ किडनी का प्रॉब्लम था, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गए. यानी उनका बड़ा सा प्रॉब्लम था. तो जुमे का दिन था और हाँ, शी वाज बेटर. तो मैंने कहा महमूद भाई उसका नाम था, महमूद भाई. रुकैया ठीक है, तो आज ले जाओ. प्रॉब्लम हो तो या मंडे को ले आना, या वीकेंड में प्रॉब्लम हुआ तो फिर आप ले आना A&E में, तो हम आपको ले लेंगे. तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम. मैंने कहा इंशाल्लाह. मैंने आई यूज द वर्ड इंशाल्लाह. मैंने कहा इंशाल्लाह दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं होगा. फिर मैं सबको देख लिया, पेशेंट को. मैं वार्ड राउंड पे और मैं ऑफिस में गया, तो ये महमूद भाई आए मुझे पीछे. ओके डॉक्टर साहब आप मुसलमान है? मैंने कहा हाँ. वो कहते हैं आपका नाम तो गटराज है, मैं समझा आप हिंदू हैं. मैंने कहा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ. तो मेरा नाम रशीद है. तो कहते हैं नमाज के तो पढ़ते हैं जुम्मा. तो वो कहते हैं, मैंने कहा कि ये पाकिस्तानी मॉस्क है, पाकिस्तानी मॉस्क मैं उधर पढ़ता हूँ. तो ये कहते हैं पाकिस्तानी मॉस्क में क्यों पढ़ते हैं, हमारे पास गुजराती मॉस्क है. मैं गुजराती हूँ, गुजराती मॉस्क उधर आ जाओ और मैं आपको ले जाऊंगा उधर. मैंने चला, अल्लाह का घर तो मेरे ठीक है, सेम थिंग, चलो मेरे साथ आ गया. उधर मैं गया. अच्छा, आई नो व्हाट आई वाज गोइंग टू डू. आई वाज गोइंग टू बिल्ड अ मॉस्क. ऐसा मुझे आ गया दिल में, आई हैव गॉट टू बिल्ड अ मॉस्क. क्योंकि वो जो जगह थी ना, उनके पास उन्होंने लैंड खरीद थी. अच्छा, 30,000 की लैंड खरीद थी और उनके पास नक्शा था, लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी. कंस्ट्रक्शन नहीं हुए, पैसे नहीं थे. या वो कहते थे 3 मिलियन पाउंड्स. तो मैंने कहा 3 मिलियन पाउंड्स 1983 की बात है,
3 million pounds is a lot of money. मैंने कहा नहीं हो सकता है. तो मैंने कमेटी से मिला, तो अपने लोग तो वही है ना, आपसे ये करेंगे, आप ये करेंगे. ना सॉरी, वो कहते हैं हम ये करेंगे. जो हम है ना वो हुआ कि आप करेंगे. Anyway, तो उसमें 2-3 ग्रुप्स हो गए. तो मैं फंस गया. मैंने कहा देखो, आप खुद को बनाना है मस्जिद तो ज़रूर बनाएंगे, लेकिन आई नीड अ स्ट्रक्चर. लेकिन मुझे लगता है कि हम प्रोफेशनल्स को इनवाइट करें. तो एनीवे, लॉन्ग स्टोरी. तो ये लोग को मैंने कहा कि आप खुद को बनाना है, मैं आपके साथ ही हूँ. कौन ले आएगा ब्रिक्स? वो कहता है मैं ले आऊँगा. आर्किटेक्ट कौन ले आएगा? मैं ले आऊँगा. सब ठीक हो गया. मैंने कहा 1 महीने के बाद हम मिलेंगे. एक महीने के बाद हम मिलेंगे दोबारा. ठीक हो गया, आप सब ले आओ. 1 महीने के बाद कोई नहीं आया मीटिंग के अंदर. भाग गए सब. मैंने कहा मैं मेरा करूँगा. तो फिर मैं रोटरी क्लब में था तब. रोटरी क्लब मुझे इनवाइट किया. अफ्रीका में मैं काम कर रहा था. अफ्रीका गया था ना मैं 2 साल के लिए. तो उधर एड्स आई थी. तो एड्स के माँ जो मरती थी ना एड्स से, तो उनके जो बच्चे थे ना, उनका मैंने कुछ फाउंडेशन बनाया. अच्छा. बच्चे का सिर्फ प्रोटीन देना, अंडे. ओके. और मैंने पैसे कलेक्ट किए, थोड़े कुछ मेरे भी थे, तो मैं जमा कर दिया बैंक के अंदर. तो उसको हर रोज 1 अंडा देना बच्चे को सिर्फ. अच्छा. वही मेरा प्रोजेक्ट था. अच्छा. और लोग वॉलसॉल थे, उनको पता था ये मेरा प्रोजेक्ट है. तो यह हो गया. तो फिर हमको 10 साल लगे ये मस्जिद बनाने में. इतनी दिक्कत थी. 10 years. अच्छा. लेकिन मैं ही था. went to South Africa, हमारी टीम थी, लिस्बन, सभी जगह पे. अच्छा. और इतनी दिक्कत हुई कि मैं पैसे, यानी हमने स्लोली बनाते थे इन स्टेजेस. तो एक ऐसा वक्त आया कि विंटर आ रही थी और उनकी छत नहीं थी. सब चीज़ें बिगड़ने वाली थी. तो मैंने कहा चलो मैं लिस्बन जाऊंगा, पोर्चुगल. तो मैं पोर्चुगल चला. तो पोर्चुगल के अंदर हाजी साहब थे. 1 हफ्ते के लिए हम गए उधर मैंने कहा कि आई विल सी पेशेंट्स फ्री ऑफ चार्ज. जिन्हें को आना है. अच्छा. अब तो मैं स्पेशलिस्ट था ना. उनका पैसे लिए, सब दुकान में कलेक्ट किया. 40,000 pounds आगे छता ले. ओके. 1984 to 1994 में हमने मेरी माँ के जन्मदिन का मस्जिद बना ओपन की. 6th of June 1984. तो ये मेरा वादा पूरा. अच्छा. तो ये तो वादा पूरा हो गया. अच्छा. तो दूसरी बात करनी है आपको, पूछना है कुछ? बिकॉज there's lots to tell you. तो ये चैरिटी में और ये जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, हाँ ठीक, इधर कैसे आए आप? अच्छा. तो ये जो खत्म हो गया ना, तो मेरे जहन में ऐसा था कि आई डू 5-year plans. ओके. कि अभी तो मैं आई वाज अ कंसल्टेंट, यू सी, वेरी वेरी वेल रिस्पेक्टेड. इतने तक कि एक गोरा मुझे मिला. वो कहता है अंग्रेजी में, हाउ डिड यू स्लिप थ्रू द नेट? हाउ डिड यू स्लिप थ्रू द नेट? यानी नेट के अंदर हम गोरे लोग को, काले लोग को नहीं, इस तरफ सब गोरे हैं. हाँ. मछली की नेट होती है ना, हाँ, उस तरफ काले, उस तरफ तो कैसे निकलेगा? हाँ. मुझे एक गोरा कहता है, डिस्क्रिमिनेशन कितना है. और मैंने 5 साल की प्लानिंग की. मस्जिद मैंने 5 साल में बनानी थी, लेकिन 10 साल. तो मैंने 5 साल में आई रोट 80 पेपर्स इन जर्नल्स, इंटरनेशनल जर्नल्स वगैरह. 5 साल उनके 5 साल दूसरे हुए. तो तब 1990 से 1995 की बात रहा होगी. तो उधर मैंने कपिल ऑफ बुक्स लिखे मैंने. अच्छा. तो जब बोस्नियन वॉर स्टार्ट हुई. ये जो आपने बुक्स लिखी, ये किस जो है सब्जेक्ट पे आपने बुक्स लिखी? 2 बुक्स लिखी तब. एक बुक है, ये प्रेजेंट किंग है ना, किंग चार्ल्स, उन्होंने एंडोर्स की. अच्छा. उन्होंने प्रीफेस किया. अच्छा. उस बुक का नाम था केयरिंग फॉर मुस्लिम पेशेंट्स. ओके. या वो आपको मिलेगी गूगल पे, केयरिंग फॉर मुस्लिम पेशेंट्स. ओके. और दूसरी बुक थी palliative care for South Asians, Muslims, Hindus and Sikhs. अरे ये रिसर्च था, वो भी रिसर्च थी. और जब मैं
ये कर रहा था, मस्जिद बन गई, तो आई सेड इन 5 years I'll do a PhD, अच्छा क्योंकि नाउ आई वांट टू बी प्रोफेसर। तो मैंने PhD करने के लिए चला, तो प्रोफेसर कहते हैं मुझे आप फुल टाइम एम्प्लॉयड है, रात काम करते हैं, डे काम करते हैं, वीकेंड्स काम करते हैं, हम दो ही थे, ऑल्टरनेट वीकेंड्स हम काम करते हैं, इट कैन नेवर बी डन, क्योंकि आई वांटेड द यूनिवर्सिटी बर्मिंघम टू डू इट। तो कहता है आई एम नॉट गोइंग टू ओके इट, प्रोफेसर फॉर पीडियाट्रिक्स कहता है। तो ऐसे हुआ कि मैं एक लेक्चर दिया दूसरी यूनिवर्सिटी से ऑन डिफरेंशियल ग्रोथ इन चिल्ड्रन, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, काले लोग, गोरे लोग, वो कैसे बड़े होते हैं। अच्छा तो किसी से मैं लेक्चर दिया ना, तो वो भाई कहता है कि व्हाई डोंट यू डू एन एमफिल। अच्छा तो मैंने कहा मेरे पास वक्त ही नहीं है। तो ही सेज टू मी, एमफिल करेंगे ना तो आपको मैं PhD भी दे दूँ 1 साल के बाद। तो 4 साल के अंदर मैंने हासिल कर ली PhD फुल टाइम वर्किंग। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, यू आर ऑलवेज फुल टाइम। या PhD किया, मेरा बच्चा भी आ गया था, एक बच्चा, अच्छा आई हैड वन बेबी गर्ल, अच्छा तो उनको भी देखभाल करनी है, स्पीक एंड लाइट, मोर्गेज मकान की देनी है, या लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग नाउ, यू सी। तो 1992 के अंदर ये बंदा आया मेरी लाइफ के अंदर, खट। बाय दिस टाइम आई वाज हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो खट करते हैं, तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा बहुत सिना है, ये वो अफ्रीका में काम करते हैं। मैंने कहा, तो मस्जिद वाले तो अब मुझे जानते थे ना जी, तो ये भाई मुझे कहते हैं मुझे कुछ ब्रेल मशीन की ज़रूरत है, आँख का मसला होता है ना, तो ये कश्मीर के लिए था। अच्छा मैंने रखे थे, लेकिन उनके चाहते थे फॉर बोस्निया। मैंने कहा मैंने कश्मीर के लिए रखे, किसी ने मुझे कहा था, तो कहते मैं भी कश्मीर का काम कर रहा हूँ, मैं कश्मीर से हूँ। अच्छा तो उसका नाम था मोहम्मद असलम। अच्छा तो हमारी दोस्ती हो गई 30 साल पहले, अच्छा अब तक जैसे कि हमें भाई है। अच्छा, तो ये चैरिटी का काम शुरू हुआ, असलम साहब उम्मी, तब 12,000 पाउंड थे उनकी बैंक अकाउंट में। उन्होंने मिडलैंड इंटरनेशनल एक बनाई और उनके अंदर थे 12,000 पाउंड, और उन्होंने मुझे दावत दी कि आप आ जा। तो मैं आया, और फिर ऐसे ओके आई बिकम ए CEO, मुझे बताते थे। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह 10-15 साल के अंदर 3 मिलियन बनाए हम। एंड देन वी स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट। सो पाकिस्तान में ना क्लेफ्ट प्रोजेक्ट है, क्लब फूड प्रोजेक्ट है, सभी प्रोजेक्ट बनाए अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बारे में एक प्रोजेक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन है व्हाट्सएप, व्हाट इज दिस? या व्हाट्सएप तो कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। व्हाट्सएप कैसे हुआ कि जब मैं अफ्रीका में था ना 2017 के अंदर, मैं अफ्रीका था इन अ बुश विलेज। तो हमने कैटरेक्ट कैंप की थी, और दूसरी चीज़ है कि आई वाज लुकिंग एट पेशेंट्स, बच्चे थे ये काले अफ्रीकन चिल्ड्रन। तो एक बच्ची उनके अंदर आई 10 साल की थी, तो उनको मैं चेक कर रहा था ना, उनकी कोई चमड़ी को प्रॉब्लम था, तो उनकी चमड़ी को चेक करता, तो मैंने उनको आँख को देखा, और वो लकड़ी से चलती थी कि जैसे कि वो अंधी है। तो मैंने आँख में देखा, तो मैंने कहा ये तो कैटरेक्ट है। हमारी कैटरेक्ट क्लिनिक चल रही थी, मैं उधर सिर्फ 10 दिन के लिए था। अच्छा, और ये दूसरा दिन था मेरा। तो फिर मैं करीबन 4-5 बजे थे, शाम हो रही थी, तो मैंने इमरान, मेरा दोस्त है कोई, इमरान से कहा, इमरान जी आई थिंक वी शुड सेंड हर टू द कैटरेक्ट। तो मैंने जब टर्न हुआ ना, तो उधर खड्डा था, खड्डे में गिर गया। आप? मैं, हाँ। अच्छा, तो मेरा पाँव टूट गया, जैसे पाँव ऐसे हुआ है। तो मैं उनको पाँव ऐसे कर लिया, राइट फुट, और सबको पता हो गया, बिकॉज आई वॉज वेल नोन इन मलावी कि डॉक्टर साहब के पाँव टूट गए। तो सभी लोग आए, ये करेंगे वो करेंगे, हॉस्पिटल में साउथ अफ्रीका भेजेंगे। मैंने कुछ नहीं, मेरे 8 दिन बाकी है, मैं ये बूट जो है ना, बूट से चलूँगा, जब मजा इंग्लैंड जाऊँगा तब सुना करूँगा। एनीवे, हमारा दूसरा चैरिटी कम हो गया, मैं आ गया इंग्लैंड, 6 महीने तक हॉस्पिटल में रहा। अच्छा, तो मैंने कहा चलने वाला नहीं हूँ। तो एक टेलीविज़न प्रोग्राम देखी,
मेरा दूसरे बच्चे का जन्म हुआ. ओके, जब दूसरे ग्रैंड चाइल्ड का जन्म हुआ 2017 की बात है, और मैं देख रहा था प्लास्टिक, क्लाइमेट चेंज, और मेरे खाने का जब आया ना सब प्लास्टिक था. तो मैंने कहा चलो बिस्मिल्लाह, व्हाट्स अप वर्ल्ड अगेन. मैंने शुरू किया वर्ल्ड सोल अगेंस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक. पर तब जब मैं 2007 में मैं क्वीन का जाने पैलेस जानते थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बना दिया था डेप्यूटी लेफ्टिनेंट टू द क्वीन. अच्छा. हाँ, तो मेरा वो जो काली टोपी पहनते हैं, वो सोड रखते हैं, वो सब वगैरह. तो ओके, तो मैंने बुलाया लॉर्ड लेफ्टिनेंट को. मैंने कहा चलो देखो ये वो सब मैंने बनाई है, तो आप ओपनिंग करो, लॉन्च करो. मैंने सारे लोग को इकट्ठे किए, बिकॉज नाउ एवरीबडी न्यू मी. काले, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सारा गांव एवरीबडी न्यू मी. तो फिर व्हाट्सएप शुरू हो गया. तो व्हाट्सएप में तो रेस्ट ऑफ इट इज हिस्ट्री, अल्हम्दुलिल्लाह जी. अच्छा, इसके बाद आपके रिसेंटली अभी कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं? प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन मैं एक दूसरी बात करूँ आपके, जो मैंने भूल गया कि जब 2014 के अंदर मैं ये कैसे बना, ये डेप्यूटी लेफ्टिनेंट की बात कर रहा हूँ. 2014 में हमारी जो काउंसिल है ना, जैसे सब पंजाब काउंसिल, तो उन्होंने बुलाया मुझे. वो कहते हैं कि आपने जो काम किया है, रिमेंबर वो जो बच्चे का कि 18 डेथ्स पर 10,000 per 100,000. I had dropped it to 9 per 100,000. अच्छा, बेस्ट इन द वेस्ट मिडलैंड्स. अच्छा, तो वो कहते हैं कि विल गिव यू फ्रीडम ऑफ द बरा ऑफ वॉल्सॉल. जैसे कि आपको पंजाब के अंदर हाईएस्ट अवार्ड है, हायर देन द मेयर. तो जो बाहर का कोई भी आया, किंग आया या क्वीन आई, जो प्राइम मिनिस्टर्स आए, जो कोई भी आए, आपको दावत आ गई ऑटोमेटिक. अच्छा, तो ये फ्रीडम मिला मुझे 2014. जब मुझे फ्रीडम मिला ना, तो इनवाइट किया था क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव को. उन्होंने मुझे देखा, मेरे काम को, पाकिस्तान के काम को, दुनिया के काम को, 23 कंट्रीज में काम कर रहा हूँ. तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे कहा नहीं कुछ, पर उन्होंने खत लिखा क्वीन को. क्वीन का खत आया मुझे. 2014 में उनका डेप्यूटी बन गया. अच्छा, तो फिर 2017 में मैं तो डेप्यूटी था, लॉर्ड लेफ्टिनेंट को बुलाया लंदन से. तो वो आके लॉन्च किया व्हाट्सएप वर्ल्ड अगेंस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक. अब उन्होंने कहा इनकी स्पीच के अंदर कि मैं प्रोफेसर गटर को जानता हूँ 3 साल के लिए. 14 में बना था, 17 आया. तो मुझे लगता है कि ये जो बंदा है ना, he'll make it world against single use plastic. So ये world against single use plastic है now in 52 countries. Wow, mashallah. And that includes also climate change. तो मैं तो 78 हूँ. 74 में मुझे लगा कि मेरे पास काफ़ी डिग्रीज, अल्हम्दुलिल्लाह. I've got 11 degrees okay now. 11 degrees. अल्हम्दुलिल्लाह जी. तो मैं कौन सी जी कौन सी? अच्छा, MBCHP, LRCP, MRCS, DCH, DOCS.COG, certificate in medical education, certificate in medicine, in medical management, because my management भी था. अच्छा, and I also received the last one was in क्या कहते हैं, in planetary health in 2000. ये जो बात है ना, 3 साल पहले की बात. So I went and did a course for 1 year and I got this degree in planetary health. So now I know a lot about the planet. तो ये आने का ये था मकसद कि I can teach people issues जैसे वगैरह about climate change, because ये लोग जो हैं they've been मेरे साथ वो जुड़े हुए हैं. So I thought I'll come here, teach them, go to various schools. तो वही करें. तो वो सब का काम तो बड़ा है. You know, principles are basically raising awareness of plastic pollution and climate change, and then education in schools, litter picking, and putting pressure on governments.
क्लाइमेट कंट्रोल एयर पोल्यूशन में ये जो आजकल स्पेशली पाकिस्तान में पंजाब में जो स्मोक का इशू बना हुआ है, जी जी जी, तो इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल करना इज नॉट इजी. जो भी चीज हो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. ये आप क्योर की बात करते हैं. अच्छा, जो बारिश पड़ता है समझ लो, तो ये स्मोक चली जाएगी. और आपको पता नहीं याद होगा या नहीं, लास्ट ईयर या ईयर बिफोर लाहौर के अंदर कुछ हवाई जहाज चढ़ाए थे. वो आए थे UAE, तो उन्होंने आर्टिफिशियल रेन बारिश बनाया की थी. बिल्कुल, I know. तो ये स्मोक जो है ना, वो कब हो गया. मैंने आज रेडियो पे सुना कि बारिश आने वाला है. हाँ जी, सैटरडे संडे मंडे को. तो इंशाल्लाह ये चले जाएगा मुझे लगता है. लेकिन जो गाड़ी है, जो ये सब्जेक्ट बहुत सा बड़ा है हमजा जी, बहुत सा बड़ा है. कि जैसे देखो कि पहले तो हाउ यू डिक्रीज फॉसिल फ्यूल्स यानी कोयले, ऑयल और गैस. तो इमीडिएट आंसर है चेंज सोर्स ऑफ एनर्जी. वो है आप सोलर पावर कर सकते हैं, विंड पावर कर सकते हैं, और आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी कर सकते हैं. वो इजी नहीं है, दिस इज एक्सपेंसिव टू चेंज फ्रॉम देयर. ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, वो थोड़ा कुछ हो रहा है ऐसा जी. सारी काफी मुल्क में हो रहा है. तो लेकिन आप जो उनका असर क्या है, वो किधर से आते हैं. अच्छा देखो, डीजल इज वर्स देन पेट्रोल. डीजल से नाइट पहले ऐसे कहते थे कि पेट्रोल इज एक्चुअली नॉट एज गुड एज डीजल. तो सब कहते डीजल लगाओ, पेट्रोल. हाँ, पिच डिफरेंस हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ना डीजल का, वो भी खतरनाक है, और उनके साथ ओजोन होता है, वो भी खतरनाक है. तो वो सिर्फ अपने जिस्म में नहीं जाता, लेकिन इट गोज थ्रू उनके जो पार्टिकुलर मैटर्स जो होते हैं ना, वो वोलेटाइल एसिड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स. तो वो इधर जाते हैं, स्ट्रोक्स, डिमेंशिया, हार्ट अटैक्स, ओके, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, डायबिटीज. इट कैन डू एवरी सिंगल ऑर्गन ऑफ द बॉडी. और जो बच्चे जो है ना, समझ लो कि गाड़ी जा रही है, वो बच्चा क्रॉस कर रहा है. अच्छा, तो बच्चा गेट स्ट्रेट फ्रॉम द एग्जॉस्ट पाइप सीधा. सो दिस इज बैड, यू सी. तो पहले तो जो गाड़ियाँ जो स्कूल में जाती है, कभी कभी चलती है, उनकी जरूरत भी नहीं है, तो स्विच ऑफ कर लो. क्या जरूरत है गाड़ी को ऑन करने. सो दिस इज छोटी चीजें जो है ना, सिगरेट पीना, बैड फॉर यू. तो मैंने एक बंदे को देखा, हम मिले, तो वो बीड़ी पीता था घर के अंदर. क्या पीता था? बीड़ी घर के अंदर. अच्छा. उनके बच्चे के साथ. मैं तो उसका मेहमान था, लेकिन मैंने उनको कहना था कि देखो बाबा, आपको मरना हो तो बाहर जाओ एंड स्मोक, बट डोंट किल योर चिल्ड्रन. दूसरी सिंपल चीज है कि आप cooking outside the house. So you cook outside the house, then you get going to the atmosphere, but not in the house. The house में तो खिड़की बंद कर देते हैं रात को, so फंस गया सब चीजें. Okay, so to stop, you have to go down to the bottom. Where did it start? Decrease fossil fuels. Not easy. Electric cars कौन afford कर सकता है? लेकिन एक बात होती है कि आप काम पे जाते हैं, पैदल पे जाओ, साइकिल पे जाओ, साइकिल पे जाओ. अच्छा, फिर वो इट्स हेल्थी फॉर यू, हेल्थी फॉर द एनवायरनमेंट. ओके, व्हाट अबाउट सम ट्रीज? डोंट कट ट्रीज. इफ ट्रीज फ्रॉम द अमेज़न गो, हमजा जी, इफ ट्रीज फ्रॉम द अमेज़न गो, अब तो 20% चले गए, 50% हो गए ना, समझ लो दुनिया खत्म. इसे अपने कुरान में कहते हैं, वो दूसरी स्क्रिप्चर्स में कहते हैं, लुक आफ्टर द प्लैनेट, यू आर द स्ट्यूड्स ऑफ द प्लैनेट. आप तो जानते होंगे, वी आर नॉट द स्ट्यूड्स ऑफ द प्लैनेट. हमको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एयर, वाटर एंड सॉइल क्लीन. अभी हमने सब सत्यानाश निकाल दिया. तो वी हैव टू पुट इट राइट, यू सी, एंड दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन अ स्मॉल वे. तो मेरा थोड़ा सा मैसेज ये है कि जुमे के खुतबे के अंदर मौलाना ने हर रोज कोई ना कोई, once a week or something, कुछ ना कुछ बयान करे क्लाइमेट चेंज, और इनवाइट करे मेरे जैसे को कि 5-10 मिनट के लिए कुछ जिक्र कर ले. दिस इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस. लेकिन यू नो समथिंग, कमिटी वोंट एग्री विद दिस, ये है वो है, ये प्रॉब्लम है. दैट्स व्हाई
वो जो बातें करते हैं ना कि आपने सुना ये हुआ, क्या हुआ, ये हुआ, दिस इज मॉस्क अपना मौलाना जी तो जाएंगे ना 3 दफा कहेंगे और मेरा जो हियरिंग एड प्रॉब्लम है ना तो मैं हियरिंग एड निकाल देता हूँ क्योंकि वही चीज बात करते हैं ऐसा वही चीज बात कर जो मैं जानता हूँ जी समझे ना कई ऐसी बात करो कि आपके जो प्लैनेट है या उसको यू सेव द प्लैनेट यार जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हज़रत उमर वो सब कुछ डिस्कस करते थे जुम्मे के खुतबे में इतना बड़ा ऑडियंस होता है आपके पास हर बंदा आता है और खुतबे पे क्या बातें हो रही हैं कोई एजुकेशनल नहीं हो एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट देखो एजुकेशन हम देते हैं हमारी चैरिटी थ्रू सर मलावी इंडिया बिहार में इधर हमने शुरू किए हैं एजुकेशन सोइंग मशीन्स स्कूल्स में हम चीज़ें देते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स तो काफ़ी है फैजलाबाद में सिर्फ एक इस यानी इस दफ़ा में आया फैजलाबाद में प्रोजेक्ट है हमने व्हील चेयर्स दिए अच्छा हमने हमना जी की फैमिली जो शौकत फैमिली है ईशा और अनिशा वो भी इन्वॉल्व थे हमने हैंड पंप्स लगाए हैं हमने काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फुटबॉल्स काफ़ी चीज़ें की हैं ओके वी हैव कैटरैक्ट ऑपरेशन हियरिंग एड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डोनर्स भी देते हैं हमारे भी पैसे उसमें माशाल्लाह ये जो क्लब फिट करते हैं ना गुजरात में वो हमारे पैसे वो जो हॉस्पिटल बनाई है ऐसा हॉस्पिटल कॉस्ट करीबन £1 million 750,000 हमने दिए थे माशाल्लाह फॉर दैट वो क्लब फुट है और हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है क्लब फुट तो पता नहीं किधर से आया वो मैं उनका आपको किधर से आया क्लब फुट की बात कर रहा हूँ एक दफ़ा मेरी तो 10th विजिट है ना मैं आया गुजरावाला से हम जाते थे गुजरात रास्ते में कुछ जुम्मा था तो हम जुम्मे पढ़ने निकले जुम्मे के बाद बाहर खड़ा तो एक बंदी बैठी खड़ी है लकड़ियों पे उनके पाँव टेढ़े थे मेरी आंख में आंसू हो गए मैंने कहा या अल्लाह ये एक किस्म का मैसेज था मुझे या तो उनके बिठाया बात की बेटी समझ लो मैं वादा करता हूँ कि ये जो चीज़ है ना वो नहीं होगी जितना मुझे बन सके बिकॉज ऑल दिस डिसेबिलिटीज जो क्या हो रहा है डिसेबिलिटी से द रीजन आई मेंशनिंग अबाउट डिसेबिलिटीज because education is important. Very important. If you get disabilities right, get them into education, you get them out of poverty. Yeah. And climate change is making poverty worse. Yeah. समझे? So सारा connection है इसके अंदर. देखिए, तो ये जो भीख मांगते हैं बच्चे, cleft वाले, पाँव वाले, अच्छा, वो they can't get a job, they can't go to school, they have got no friends, the family don't want them. You see? By doing simple operations, £350, समझ लो 1.5 lakh rupees, we change their lives. 27,000 operations हमने किए हैं होंडो के over the last 15-20 years. ये भी हमने कितने बनाए hundreds कि वो स्टिक से चल सकते हैं. देखा ये तो मैं सिर्फ कहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट्स काफ़ी हैं हमारे पास और एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट. इसे सोइंग स्किल्स हमने चलाया है फैजलाबाद के अंदर. You see, to get people out of poverty because they're getting poorer because of climate change. और climate change क्यों? सिलाद आता है, crops have gone, trees have gone, lives have gone. People have to move out. वो जाते हैं from the coast into the cities. They can't afford cities. People kill themselves because they can't afford to live. They can't afford to provide for their families. Yeah. So, you know, so this is all climate change. So मैं इधर आया हूँ. I'm not claiming to be an expert by any means, but I've got a qualification. I'm still learning. मैं still सीखता हूँ. लेकिन जो मेरे पास knowledge जो है, you want to through WhatsApp ambassadors जो मेरे पास है. Not only here, we have WhatsApp in 53 countries. तो ये जो है ना, हमारी वेबसाइट पे है www.whatsappme.com. उसके अंदर आप देखेंगे ईश्वर की है तारीफ, लुबैना कश्मीर की वो तारीफ है और वो यमन के है, साउथ अफ्रीका की है, मलावी की है. All these people, you know, just in Africa we got 22 ambassadors. Mashallah. So yeah, it's a big thing. WhatsApp, you see.
تو اب میں تو خوش ہوں. If I want to be an ambassador of WhatsApp, Of so course you can be an ambassador. what وہ کیا can- چیز ہے کہ we like people, کافی لوگ کہتے ہیں کہ we want to be ambassadors, yeah, but you need to understand and learn پلاسٹک کدھر سے آ رہا ہے. say for example plastic comes from oil and gas, if people don't know then they throw it away. When they throw it away, kills the fish. مچھلی کھاتی ہے کٹ 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 پھر وہ ہم کھاتے ہیں. پھر ہم کھاتے ہیں. پلاسٹک makes you infertile, gives you cancers, attacks your immune system. So all these things are important. So those are the things that people like you say, if you want to be 6 months, you have to have 2 or 3 tutorials from me. So Okay. جب بات کرتے ہیں it's got to be accurate. You see? Okay. کہ میں نے جو حاصل کی ہے, میرے جو organizations ہے, UNESCO ہے, Lancet. Do you got any reward regarding to this work, environmental? I've got quite a few green awards. ابھی مجھے award ملا BBC کا, BBC Making a Difference Award اچھا. for the environment. ماشاءاللہ. Alhamdulillah. Wow. Yeah. So yeah, Alhamdulillah. So if we want to connect you or connect WhatsApp, so we have to go on Google and search your website. Well, the main thing is you connect with me directly because I know you. Yeah. So we can say we're having آپ کو seminars دوں گا. You can connect with Ishal. So we can ساتھ میں ساتھ ہم کر سکتے ہیں because time is essential. Yeah. So you see, جیسے سمجھ لو کہ ایک let's localize ایک پلیٹفارم ہے. They get for me 15-20 اسکول. تو میں جب ورچوئل لیکچر دیتا ہوں نا, قریباً 10-20 ہزار ہوتے ہیں بچے. ماشاءاللہ. And those kids, I tell them, you go around your school, litter pick کر لو, recycling bin میں ڈال دو. Simple. کافی چیزیں simple ہے ہم جانے. You see, you just have to work with it. Yeah. So those are the 4 principles I mentioned. And then principle 4 Rs: refuse, reduce, reuse, recycle. Plastic. Okay, thank you, Dr. Catcherd. I'm closing the discussion by the 2 examples. As you know, اللہ تعالیٰ قال اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا درد دل کے واسطے تجھے پیدا کیا انسان کہ آپ جو ہے وہ ایک دوسرے کی فکر کرو, ورنہ عبادت کے لیے فرشتے بہت تھے. تو دیکھیں کیسے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی زندگی, ایک بہت پیاری آیت ہے قرآن کی, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ تعالیٰ انسان سے کہتا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول میں ہی پیدا کیا ہے, تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے. آج اگر آپ لوگوں کو دیکھیں, نوجوانوں کو دیکھیں, ادھر ادھر دیکھیں, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف کھانا پینا, سونا, کپڑے پہننا, عیاشی کرنا, اور ہمارا کوئی مقصد نہیں. اللہ تعالیٰ سورۃ 3 میں فرماتا ہے ثم رددناه اسفل سافلین. اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت پیدا کیا ہے, اس طرح جو کہ جس نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ لوگوں کے لیے درد دل کے واسطے پیدا کیا تجھے ہے انسان. لیکن انسان خود چوز کرتا ہے ثم رددناه اسفل سافلین کہ وہ جانور سے بھی گر جاتا ہے. یہ آپ کے ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے ڈرائیو کرتے ہیں. تو آج کے لیے اجازت دیں. جزاک اللہ. may Allah bless you all.